Hello students, welcome back to SST class. As you all know, we have already completed the explanation of history lesson 2 from trade to territory. Today we will do the question answer of this lesson. Now before it, student, please take out your books. As I have given you already in homework the glossary and match the following and fill in the blanks. Now once again I am telling you which are the glossary. If you haven't done, you have to do it in your fair copy. Now first take out your book. Lesson number 2. The glossary are given first in page number 10. The first glossary, or we can say hard word, is mercantile, which means a business enterprise that makes profit primarily through trade. Now I am only reading out the words. You have to write it, the word meaning or glossary from your book. Farman, it is in page number 11. Then page number 12 is puppet. Then after that take out page number 16. There are two word meaning injunction and subservience. Then in page number 18 is confederacy. Then page number 21 Qazi, Mufti, impeachment. These are all glossary or hard words which you have to do in your fair copy. Dharmshastra, Sawar, Muscat, Matchlock. Clear? These are the glossary which you have to do if you haven't done in your copy. Then next, first question in your book is given, match the following. The first word is Diwani. The Diwani, uska match क्या है? Right to collect लैंड रेवेन्यू. जो दीवानी का आंसर है मैच द फॉलोइंग, जो करेक्ट मैच है उसका वो है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. नेक्स्ट है टाइगर ऑफ मैसूर, उसका आंसर है टीपू सुल्तान. ना फौजदारी अदालत, उसका आंसर है क्रिमिनल कोर्ट, या उसका करेक्ट मैच है क्रिमिनल कोर्ट. रानी चेन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर. देन सिपाही, उसका मैच है सिपॉय. सिपाही हिंदी में, और जब वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोनाउंस करते थे सिपाही वर्ड को कैसे बोलते थे? सिपॉय. नाउ वंस अगेन मैच द फॉलोइंग मैं फिर से बता रही हूँ. फर्स्ट है दीवानी, जिसका है आंसर राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान. फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट. रानी चेन्नम्मा led an anti-British movement in Kittur. सिपाही, उसका मैच है सिपॉय. Now next question number 2 is given in your book. Fill in the blanks. The first is the British conquest of Bengal began with the battle of, then it is written dash. Now here you will fill Plassey. The spelling of Plassey, Plassey. Again I am repeating. First, fill in the blanks. The British conquest of Bengal began with the battle of dash. In dash, you will fill Plassey if you haven't written. Plassey. Now B, yeah, we can say second. Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of dash. You will fill Mysore. Mysore. Again, Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of Mysore. Now the next fill in the blanks. Dalhousie implemented the doctrine of dash. You will fill lapse. Lapse. Again, Dalhousie implemented the doctrine of lapse. Now next is Maratha kingdoms were located mainly in the dash part of India. Here you will write western. Western. Again, Maratha kingdoms were located mainly in the dash part of India. Western. In this space, you will write western part of India. Now today we will start with the explanation of question answers.
Now question number 4. What attracted European trading companies to India? या why European trading companies came to India? किस चीज से वो अट्रैक्ट हुए जो वो इंडिया आए? उसका आंसर है the European companies saw great opportunities in trade with India. जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हें बहुत अच्छा मौका लगा इंडिया के साथ ट्रेड करने में. और वो क्यों लगा? They could buy goods एट अ चीपर रेट इन इंडिया. क्योंकि वो इंडिया से जो गुड्स खरीदना चाहते थे वो कौन से गुड्स थे? मेनली स्पाइसेस, मसाले, कपड़े जैसे कॉटन एंड सिल्क. दे कुड बाय गुड्स एट अ चीपर रेट इन इंडिया. सस्ते दामों में वो गुड्स खरीद सकते थे इंडिया में. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट ए हायर प्राइस. जिससे वो यहाँ से सस्ते दामों में गुड्स या सामान खरीदे और फिर उसे यूरोपियन कंट्रीज में वो ज्यादा दामों में बेच सके, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो. क्योंकि किसी भी ट्रेड या बिजनेस का मेन एम क्या होता है? टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट. अगेन फिर से बता रही हूं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं. व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? आंसर, द यूरोपियन कंपनीज सॉ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज in trade with India. And why they found this great opportunity? They could buy goods at a cheaper rate. सस्ते दामों में वो इंडिया से गुड्स खरीद सकते थे. And carry them back to Europe to sell at a higher price. और फिर वो वापस उसे यूरोपियन कंट्रीज ले जाते थे और वहां वो उसे महंगे दामों में बेचते थे और उन्हें उससे ज्यादा प्रॉफिट होता था. This opportunity attracted them in India. Next question number 5. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? ऐसे क्या conflict differences या मतभेद थे बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? First point, the Nawabs refused to grant concessions to the company. जो नवाब से बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया कि वो कोई भी कंसेशन नहीं देंगे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी चीज में कोई छूट नहीं देंगे. सेकेंड, दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड. अगर कंपनी को ट्रेड करना है इंडिया में तो उसके बदले उन्हें कुछ देना पड़ेगा, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, धन दौलत गिफ्ट या कुछ भी देना पड़ेगा. दे डिनाइड कंपनी द राइट फॉर मिंट कॉइन्स. जो बंगाल नवाब थे उन्होंने कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया कि वो कॉइन्स भी नहीं, मिंट कॉइन्स का मतलब होता है कॉइन्स नहीं बना सकते. एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन. और वो फोर्टिफिकेशन और किले भी नहीं बना सकते जहां पे वो अपनी आर्मी को रख सके. द नवाब्स एक्यूज द कंपनी ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस एंड राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स. फिर नवाब ने एक और इल्जाम लगाया कंपनी में कि वो अपने टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और नवाब्स को क्या लिखते हैं? वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं जो नवाब्स के डिग्निटी के अगेंस्ट है. फिर ऑन द अदर हैंड द कंपनी ऑल्सो एक्यूज द नवाब्स इन द फॉलोइंग वेज. कंपनी ऑल्सो एक्यूज द नवाब्स. अब कंपनी ने क्या एक्यूजिशन लगाया बंगाल के नवाब्स में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था? फर्स्ट, द लोकल ऑफिशियल ऑफ द नवाब्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी बाय मेकिंग अनजस्ट डिमांड्स. जो कंपनी ऑफिशियल्स ने इल्जाम लगाया वो क्या लगाया? जो नवाब्स हैं बंगाल के वो उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं. और कैसे खराब कर रहे हैं? बाय अनजस्ट डिमांड. जो डिमांड्स सही नहीं है ऐसी डिमांड्स करके उनका वो बिजनेस या ट्रेड खराब कर रहे हैं. सेकेंड, द कंपनी हैड टू पे एक्सेसिव ड्यूटीज. और जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो नवाब्स को ड्यूटीज दे रही है वो बहुत ज्यादा है. जो ट्रेड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो ड्यूटीज बहुत ज्यादा है. ड्यूटीज अ टाइप ऑफ टैक्स. थर्ड, द कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एनलार्ज सेटलमेंट एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स. जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब ने, बंगाल नवाब ने परमिशन नहीं दी है किसकी? अपने सेटलमेंट्स बढ़ाने की और अपने फोर्ट्स को दोबारा बिल्ड करने की. दीज वर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी.